Hi everyone, today we will be learning about certain collocations for IELTS Writing Task 2 that will really assist you in improving your score in this particular module. So before learning certain words that you can add on your Writing Task 2, we will learn about the meaning of the collocations first. So first of all, we will discuss the meaning of the collocations. Collocations generally ना combination of कुछ words हैं जो हम अपने IELTS task में include करते हैं to give clarity to the examiner about the usage of certain words. Moreover, जो examiners हैं वो collocations को बहुत ज़्यादा importance देते हैं क्योंकि इसके through वो check करते हैं कि whether the student is having advanced knowledge about the words or his or her knowledge is just intermediate one. So try to add on certain collocations, and today we will learn this thing. So let's learn certain collocations that you can add in your task 2 writing in order to boost up your scores. This is the very first sentence that you can see on the screen. Tourism has brought benefits for the country. This is a very common essay tourism वाला आपको पेपर में कई बार आ जाता है और ये लाइन कॉमन है जो हम अपने टास्क में लिखते हैं जिसमें हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि टूरिज्म से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बट वेट दिस इज़ अ वेरी इजी सेंटेंस दिस इज़ नॉट अ स्कोरिंग वन एज वेल क्योंकि इसमें जस्ट सिंपल वर्ड्स यूज करके मैंने अपना व्यू पॉइंट मेंशन कर दिया. नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ टू अपग्रेड आवर सेंटेंसेस. So we will focus on one particular word here that I have underlined. The word is benefits. अब देखो जब टूरिज्म होगा टूरिस्ट आएंगे कंट्री में तो हमारी कंट्री को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है जी. जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होगा इनफ्लो ऑफ कैश इन द कंट्री. सो जब कैश का इनफ्लो किसी कंट्री में आता है तो वो कौन सा बेनिफिट डिस्क्राइब करता है. वो जो बेनिफिट डिस्क्राइब करता है वो होता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स. नाउ सी माई सेंटेंस ओवर हेयर. I have written tourism has brought economic benefits for the country. In the very first sentence, I have written just फायदे of tourism. But in the second sentence, I have specified this thing कि tourism के आने से जो फायदा होगा वो फायदा कौन सा है. इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे कंट्री को जिस भी कंट्री में टूरिज्म आएगा या टूरिस्ट का नंबर इंक्रीज होगा. So in this way you can work on collocation part where you are just adding certain words to give more clarity to the person who is reading your essay. So this is our second sentence. What is written on the screen here? Problems related to environment can be solved by adopting certain solutions. Environment से related जितनी भी problems हैं उनको आसानी से solve किया जा सकता है by following certain solutions. और जो ये sentence है वो हम use करते हैं problematic tasks में generally in the introduction to give answer of the solution wala question. Now this is again a very basic sentence. Now we will learn how we will upgrade this sentence. Now see here, problems related to environment can be solved by adopting certain effective solutions. Now in front of solutions, which word I have added? Effective. Effective मतलब suitable solutions जो हम अपने problem को solve करने के लिए use कर सकते हैं. Now this is your next sentence. Introduction of sports in schools is vital for the development of students. Yes, स्पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इससे बच्चों की डेवलपमेंट हो सके. नाउ सी हेयर विच वर्ड आई हैव अंडरलाइंड हेयर. यहाँ पे मैंने जो वर्ड अंडरलाइन किया है वो है डेवलपमेंट. अब खुद सोचो जब बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा तो क्या डेवलपमेंट होगी उसकी. मेंटल डेवलपमेंट होगी. क्यों होगी मेंटल डेवलपमेंट? क्योंकि वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाएगा खेलते समय. उसी टाइम पे फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी, मसल मूवमेंट होगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी. तो फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके की डेवलपमेंट होगी. नाउ सी आई हैव एडेड विच वर्ड इन माई नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैव रिटन टू वर्ड्स ओवर हेयर, ओवरऑल एंड होलिस्टिक. इन दोनों का मतलब होता है कंप्लीट. अभी हमने डिस्कस किया फिजिकल एंड मेंटल दोनों डेवलपमेंट्स होंगी, तो इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए आई हैव एडेड विच वर्ड ओवर हेयर, ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. सो स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए, पूरा का पूरा सेंटेंस सेम है. आई हैव जस्ट एडेड वन वर्ड हेयर, डेवलपमेंट होगी और वो डेवलपमेंट कौन सी है? ओवरऑल डेवलपमेंट. यस, दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस. इन सिटीज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इज राइजिंग. सिटीज में जो ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है. नाउ आई हैव अंडरलाइंड विच वर्ड ओवर हियर, सिटीज.
जनरली बताओ मेरे को कि कहाँ बढ़ती है प्रॉब्लम ट्रैफिक की, कौन सी सिटीज में बढ़ेगी, छोटी सिटीज में या बड़ी सिटीज में? डेफिनेटली इन बड़ी सिटीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा इंक्रीज होगी. नाउ सी माई सेंटेंस व्हाट आई हैव रिटन. इन mega cities, you can use mega word over here, or you can replace this word with metro cities. The problem of traffic congestion is rising. Again, I have taken one word and in front of that word I have added another word to give clarity about the word. So cities, कौन सी cities? Small towns, मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज, किस चीज की मैं बात कर रही हूँ? सो ट्रैफिक कंजेशन है डेफिनेटली बड़ी सिटीज में होगा. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड वर्ड मेगा सिटीज ओवर हियर. So this is my next sentence. What I have written: multinational companies provide training to their employees to upgrade their skills. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड करती हैं? ट्रेनिंग, ताकि वो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सके. नाउ द वर्ड दैट आई हैव अंडरलाइंड इज ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग देखो, दो तरीके की ट्रेनिंग होती है. एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको कंपनी के प्रेमिसेस में मिलेगी. ऑफ द जॉब के लिए आपको कंपनी के बाहर भी कहीं भेजा जा सकता है ट्रेनिंग लेने के लिए. सो आई हैव मेड अ कॉलोकेशन ओवर हियर बाय यूजिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्ड. कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं ट्रेनिंग. कौन सी ट्रेनिंग दे रही है अपने एम्प्लॉयज को? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ताकि इसके साथ उनके स्किल्स अपग्रेड हो सके. आप यहाँ पे ऑन द जॉब की जगह पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी लिख सकते हो, या आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हो. दैट मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब एज वेल एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज. नेक्स्ट सेंटेंस है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द रेट ऑफ क्राइम इज राइजिंग. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यू ऑलरेडी नो, जहां पे डेवलपमेंट अभी इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पे किस चीज का रेट बढ़ रहा है? क्राइम का रेट बढ़ रहा है. नाउ सी माई नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैव मेंशन द टाइप ऑफ क्राइम्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्राइम, पेटी क्राइम्स और मेजर. पेटी मतलब छोटे मोटे क्राइम, जैसे चेन स्नैचिंग हो गया, पिक पॉकेटिंग हो गया. मेजर क्राइम्स में यू कैन कवर रॉबरी, मर्डर. सो आई हैव स्पेसिफाइड इन माई सेंटेंस दैट क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम, कौन से क्राइम का रेट बढ़ रहा है? पेटी क्राइम्स का रेट भी बढ़ सकता है एंड मेजर क्राइम का रेट भी राइज हो सकता है. This is the next sentence in which schools provide environment to the students in which they study appropriately. Schools जो है एक तरीके का environment provide करते हैं बच्चों को, जिसके थ्रू बच्चे appropriately पढ़ाई करते हैं. अब स्कूल में कैसा environment होता है? You all know कि rules regulations होते हैं, proper time table follow होता है, जिस वजह से बच्चा आराम से अपनी पढ़ाई को continue कर पाता है. So कैसा environment स्कूल देता है? I have mentioned this thing in my next sentence. Schools provide disciplined environment to the students. कैसा environment देता है स्कूल? एक disciplined environment दे रहा है, जिसके थ्रू वो बच्चा आराम से अपनी पढ़ाई जो है वो स्कूल में बैठ के कंटिन्यू कर सकता है. This is the last sentence of this video. Books provide detailed information to the learners. Books हम सभी पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिले किसी भी टॉपिक की. तो नेक्स्ट देखो मैंने कॉलोकेशन कैसे बनाई इसकी. बुक्स प्रोवाइड डिटेल्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू द लर्नर. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कौन सी है, किस चीज से रिलेटेड है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. जैसे आपने साइंस की बुक पढ़ी तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? साइंस की, सोशल साइंस की इंफॉर्मेशन लेनी है, सो यू विल रीड सोशल साइंस वाली बुक. सो बुक्स जो है वो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रही है, और इंफॉर्मेशन भी कौन सी है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू द learners. This is all about today's session. I hope the content is useful for you. For more such content, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you everyone.